تب جا کے خزانہ اتنا استاد محترم کی شخصیت اور خودی سی خصوصیات سے واقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا شمار استاد اور اساتذہ میں ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اس طور پر کہ ندوی میں بہت سے اساتذہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے استاد محترم مولانا ڈاکٹر عبد الصابان روح القدس صاحب مکی مدنی دامت برکاتہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے کہ ہمیں قریبی ان سے کچھ سننے کا موقع ملے گا۔ فی الحال میں مولانا ابو طلحہ ندوی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنی بات پیش کریں، اپنا نظر تعلق سے کچھ جمائیں باتیں۔ آزاد گرامی ہم لوگ بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تحقیق کی دنیا میں عالم اسلام میں بہت ہی مشہور ہے۔ ان کی تعلیم جیسے یافتہ کرنے کا میں تقریباً حیران ہوئی، ان شاء اللہ بھی زیر تعلیم تھا وہ حد سے زیادہ ہے۔ ہم کو سب طالب علم تھا، سمجھے نہیں۔ مطلب یہ ہے یہاں بیٹھ کر جب فہد تھے، یہاں بیٹھ کر ایک رسالہ کا کوئی یہ تھا میں جلدی وہ یہاں سے تصحیح کر دیا، ان کو فہد کا یہ ایوارڈ ملا۔ یہاں بیٹھ کر سعودی عرب کا رسالہ کا تصحیح کرتے ہیں۔ وہ علم ہم لوگ جو کھیل دیکھنے میں جتنا یہ ہوتا وہ پڑھنے کا ان کو دلچسپی۔ سب کو کوئی اس کا ان لوگوں کو پکڑ لیا حضرت پڑھائی اور لکھا دیتے ہیں، نہیں کر سکتے ہم لوگ کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے تو اس قسم کا سب تھے۔ اور وہ لوگ ابھی سے کسی کوئی مقابلہ نہیں کرتے، کمپٹیشن نہیں کرتے۔ یہ مولانا صاحب معصومی صاحب سے بہت ہی فیضیات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں ایک پروگرام میں آئے ہیں جنوبی بنگال اردو اکیڈمی مولانا معصومی صاحب پر لائف اینڈ ورک پر جو ہے ایک سیمینار دراصل اسی میں شرکت کے لیے ہم آئے ہیں جو کل 3 بجے سے اس کا پروگرام شروع ہوگا، لیکن ہم ایک دن پہلے آئے اور مولانا کے ہم مہمان ہیں، یہ ان کی پوری ضیافت میں ہیں ہم، تو اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے تمام عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، شاگردوں سے سب سے ملاقات کریں۔ ہمارے شاہد عالم صاحب ہیں، مولانا معصومی صاحب کے خیش ہیں، بڑے گورنمنٹ کے بڑے اہم پوسٹ پر ہیں، اس سے رابطہ ہوا ہے اور ہمیں اپنے گھر بھی لے جائیں گے اور درخواست پر یہاں پر رسالے صاحب ان کی میزبانی اور ان کی ضیافت پر آپ سبھی لوگ اس گرمی میں یہاں تشریف لائے۔ یہ ایک علم اور اہل علم کے لیے ایک اس سے بڑھ کر ہمیں اس کا شکریہ اور اس سے بڑھ کر اعزاز میں نہیں سمجھتا۔ کسی بھی پڑھے لکھے انسان کا کہیں گزر ہو اور وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ان لوگوں کا کہ اندر جو ٹیسٹ ہے زندگی اس سے پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کے اندر ٹیسٹ ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہو گیا۔ دونوں جو ٹرن ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر جو ایک ٹرن
टर्निंग पॉइंट आया, इसने एक लाइफ स्टाइल बदल दिया। खास बात नहीं है, लोग मदरसे पढ़ने जाते हैं, नदवा जाते हैं तो बन जाते हैं, शामपुर जाते हैं, मस्जिद पढ़ना हो तो अजहर जाते हैं, बगदाद जाते हैं, मदीने जाते हैं, तो ये कोई खास बात नहीं है। लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान को कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुअल्लिम, कोई ऐसा गाइड मिल जाता है कि जो उसकी ज़िंदगी का महत्व है। कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि 1979 में मैं वहाँ से मदीने से आकर हो गया और 1951 में हमारी शादी हुई। मौलाना महबूब रहमान साहब अजहरी जो यहाँ मदरसा आलिया में इनके और सबके उस्ताद थे, और वो उनके बड़े ख़ास, बिल्कुल फास्ट फ्रेंड जिसको कहिए, बुजुर्ग दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त, जिसको उसकी मुतम्मिम इब्न नुवैरा यरबुई का शेर है, वो दो भाई थे जो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे, बात से बात निकलती है। तो मुतम्मिम का जो वो शायर थे वो मुतम्मिम, और ये सब असर जाहिली का शायर है वो मुतम्मिम इब्न नुवैरा यरबुई। तो उसके भाई का जब एक ख़ास गलतफहमी की बुनियाद पर जो इर्तिदाद की जो तहरीक चल रही थी, उसी में वो शहीद कर दिए गए थे। बाद में ये चीज़ मालूम हुआ, ये चीज़ बात सामने आई, तो बाद उसने लिखा है, उसने मरसिया लिखा है, मुतम्मिम ने अपने भाई का, मालिक इब्न नुवैरा का मरसिया लिखा है। वो मरसिया इतना ताकतवर है और मरसिया के बाब में इतना ताकतवर है कि जब हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर की जब वफ़ात हुई तो वो वहाँ मक्के में नहीं थी, वो कहीं दूर थी। और बहरहाल वो जब उनकी तदफीन वगैरह सब हो गई तब वो आई हैं, और आने के बाद वो उनके कब्र पर गई हैं, और कब्र पर जो मुतम्मिम का जो मरसिया है वो मरसिया उन्होंने पढ़ा, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल जनाइज़ में उसको उस मरसिया को उन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड कर दिया है। फिर हज़रत उमर के जो भाई हज़रत ज़ैद की मौता की जंग के अंदर जो शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि ज़रा सा भाई उनसे कहा कि ज़रा उनका चंद अशार सुनाना ज़रा मुतम्मिम का। तो उसने कह रहे कि हम जब भाई का इंतकाल हो गया तो कह रहे हम और मालिक इस तरह से जैसे वो जजीमा के दो वो थे, हम नशी थे, और दो उनके हम नेवाला और प्याला, जिस तरह वो जमा होते थे, इस तरह हम दोनों भाई जो है जमा होते थे। तो पर ये मिसाल दी जाती है किसी दो दोस्तों के एक साथ रहने की। तो मासूमी साहब और मौलाना महबूब रहमान साहब अजहरी का नगवाने जजीमा एक ज़माने ख़त्म नहीं लगता है, एक ज़माने तक वो लोग साथ रहे। 28 साल मौलाना यहाँ रहे, महबूब रहमान साहब अजहरी। और जब मदरसा आलिया का जब वो हुआ है क्या चीज़, जो नई जो नशत शानिया हुई है, तो उसी में दोनों का इंतखाब हुआ है बहसीत उस्ताद के यहाँ पर काम करने के लिए। तब से हम नहीं वाकिफ़ थे उससे, फिर से मासूमी साहब से वाकिफ़ नहीं थे। और एक नदवा में अदब इस्लामी का पहला सेमिनार था, ताकि वो 3 रोज़ा था। वो सेमिनार जो है 18, 19, 20, 30 था, और 22 अप्रैल को हमारी शादी थी। तो वो उनके सेमिनार ख़त्म हुआ, उस सेमिनार में उनका मकाला था काब इब्न मालिक के नसब और उसकी शायरी के ऊपर, जो 6 किस्तों में वो अलबासुल इस्लामी में छपा है। उसका उन्होंने एक तरह से जो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है वो उन्होंने पेश किया था। उससे हम लोगों ने और सब लोगों ने उनको पहचाना, उनको मासूमी साहब को। बहरहाल फिर हम जब दुल्हन, हम लोग मुंगेर के रहने वाले हैं, तो जब हम टिकट बनवा लीजिएगा इतना ही, तो हमने हौसला पे उनके पटना उठना के मेहमान आए थे कलकत्ता के, तो हम वाकिफ़ भी नहीं थे उनसे।
दोबारा फिर मालूम हुआ कि जब ट्रेन में हमारा उनका साथ हो गया, जब शादी हुई तो उसमें मुलाकात हुई, लेकिन उनके मकाम मरतबा से नहीं हमने नहीं पहचाना उनको। और एक शादी की भीड़ भाड़ थी, हमारे घर के लोग सब आए हुए थे, हम उसमें मसरूफ थे। दोबारा फिर रास्ते में हम लोग एक ही ट्रेन से हम लोग गए हैं कि हमने सामने था, तो वो हमसे अरबी में बातें शुरू कर दी उन्होंने। मदीने से पढ़ के आए तो हमारा पूरे रास्ते हमारी उनकी अरबी में बातचीत होती रही, हमको भी मज़ा आया और उनको भी मज़ा आया, और सफ़र कैसे कर लिया फिर पता नहीं चला। तो उस मेंबर के तौर पर वो आए वहाँ पर। फिर उसके बाद उनको तौसीए खुतबात के लिए उनको बुलाया गया, मौलाना अली मियाँ के ज़माने में उनको बुलाया गया, जिनको मसूमी साहब को तौसीए खुतबात के लिए बुलाया गया। उसमें उन्होंने इमाम सगानी हैं, नवाब सिद्दीक़ हसन खां और तफसीर मज़हरी का नाक़िदाना जायज़ा, ये सब, और अबुल हसन अली बाखरवी साहिब दुनियतुल क़स्र, इसके ऊपर उनका जो है उनके कई नशिस्तें हुई मौलाना अली मियाँ की सदारत के अंदर। तो हम लोगों ने उसको पहचाना। तो बहरहाल उसके बाद फिर आए, वो गए चले।